Hello. Uh, this is the second version of whatever the podcast was supposed to be. I recorded something on कुछ दिन पहले. I guess it was 26th evening. I recorded something, and some things happened, and then eventually the value of some words or some references that have been given into that podcast, those changed. So here I am again, uh, recording take two, and it will be posted as take two. Uh, Hello everyone, this is Soul Creators, and you're watching Ye Baatein, season one, episode four, Badlav. So, getting into the conversation, what I would actually like to have with everybody is, first is status update about what is going on. Second is status update about what I am thinking. Status update about everything that has happened in previous 9, 8, 9 months, 12 months, whatever it is. um, वो चीज़ बताना ज़रूरी है सब लोगों को कि एक्चुअली में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है. तो अ, यही सोचा जा रहा है, यही समझा जा रहा है कि हम लोग एक डेड एंड से एक नई बिगनिंग की तरफ चलना शुरू करें. वी completed our time at Northern. We came back. We were at home. I was at home for, let's say, um, a good amount of 7 to 8 months, where I was just streaming, just doing stuff, just doing my freelance work and everything. तो वो करने के बाद में apparently I got a project. uh, from in that particular 8 to 9 months, I worked upon two projects by Riot. I'm very thankful to Fatima and the entire Riot team to give me that opportunity to work upon Monsoon Grind and Abyside. It was a great experience, new learnings, how to handle people, and part of my job. But it was very new for me actually to do that kind of deals also. So that happened. Great experience. Decent. Whatever earnings came through it, it was decent. It helped me. It helped me a lot actually. So that happened. Then again, uh, meanwhile, personal life was a bit, we can say a bit, they had too many ups and downs. But हुआ है, changes है काफ़ी सारे. When we came back from Delhi, there was somebody who I used to talk and I used to connect. Eventually things did not work, it did not go well, we cut off on a bad end. No, not from my side at least, it's from the other person's side. So whatever it is, I don't have any grudges, but I don't want to be in contact with anybody right now in that particular sense from that person. So leaving out of that, coming into a space where meeting new people, new friends, new people that could encourage me in moving towards protocol, uh, we made a certain amount of progress, I would call it, in a sense where we are moving in a direction where, I personally don't take that as a compliment for myself, because I am literally just starting to do things. Recognition from people, appreciation from people, whatever protocol has been doing. I would not like to refer protocol as I, just because for the reason कि um, there might be a force behind uh, that movement to keep moving in a certain direction. Could be my uh, small efforts that I do, uh, and there are other factors that actually have been helping a lot to move us in the direction. And recognition from industry people, those who are legitimately very, very, very big in the community, have respect earned for years now from the community. It feels nice when you are just a random guy that pops into every space and people just know you, that you are this is this guy.
and somebody who is well recognized, who's established, comes up to you and says ki don't, these are the word of the man. uh, he said me, Kratos, don't fear, don't feel that you're alone, we are always with you. And that is a very big person that has actually told it, and it means a lot for me because I was not expecting that to happen. It is a very I could say overwhelming compliment that I received from somebody, which was I did not expect it. I legitimately did not expect it. It was a public setting. I could have just cried at that particular moment. I was so overwhelmed by that particular statement that person made, and it actually made me feel that somewhere or the other, whatever efforts I have been putting in to build something from scratch, it is showing up somewhere. A person who came for an event at Mumbai, I'm talking about Bunker actually, uh, and the people that I'm referring to right now, the person that actually told me something is Mohit sir himself. Uh, Amitesh sir had a very good and a very long conversation with me at Bunker, exactly not at Bunker, but outside Antisocial. We had a 1.5 hour conversation. When the party was going on inside, we stood outside and had a very, very, very meaningful and great conversation. And the amount of belief that my thoughts or my ambitious nature could portray and relay to that person was insane. He understood whatever I was trying to do, the passion, the fire, and then everything. He gets it, and I'm very glad that I was just in the first meeting. I was able to convey it to him, and he could see that in my eyes that something. I'm trying to do something which is very unique, and that appreciation was very overwhelming for me. Uh, a funny incident happened which was very surprising for me itself, where Mohit sir, I actually met Mohit sir first time at Pune Antisocial for a watch party. That time we had a 10-minute conversation. I did not even think he would recognize me in that manner. That I still remember you had this conversation, and I was very shocked about it. He's a very big person in the community, handles lots of stuff, is responsible for a team that represents South Asia at VCT Pacific. He is one of the people that is an important person. And when before he introduced me to Amitesh sir, he actually gave an intro of mine to him, and I still till the date I don't know what did he say, but it was good enough for Amitesh sir to come outside of the party, where there was a small space where everybody was getting checked and entries were being doing, and we did not have the access to re-entries. We went out, and apparently we stood there for 1.5 hour approximate-ish, till the time they were supposed to leave and go back. We had a very good conversation, discussed lots of things, lots of future plans, lots of ideas, lots of things to research. Some books that actually Amitesh sir has actually told me, started to uh, find those books. Uh, One book is by David Goggins, Why Can't Hurt Why, by David Goggins. Uh, Again, there is one more book that he has actually told me. I have written it down. I've tried to get the copy of it, so like the audible copy of it, because I don't read books that much. A book needs to be very, 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 very much interesting for me. But I will listen to all these books, and he has told me one more recommendation just today, which is Crucial Conversations by uh, some Peterson, somebody, Kenny Peterson, I guess. So I found there are three books for it, 3 to 4 books of it. So I'll just start with the conversation one, Crucial Conversations, and then move on to some other book. Uh, so इस पॉडकास्ट का बदलाव जो वर्ड यूज़ करा है वो क्यों करा है? तो
if you have listened to the last three podcasts that I've uploaded on my channel, you will understand there is an evolution of a person who was uh, in 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 deep admiration and deep, I would put that word, in deep love with a person that he admires and uh, respects a lot, has dedication towards that person and devotion towards that person. That entirely is a different take now, where after 2.5 years, I have thought to give myself another chance. I thought to give him another correction. I thought myself I could give myself another chance, and I met recently somebody, did not meet but eventually had a conversation where I felt like I could give a second chance to myself. um, had a very sweet conversation for amount of like 2 3 weeks. I knew this person for last 1.5 years, but I did not had like very 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 like long conversations. But apparently when I was traveling to DreamHack, I had a conversation. I enjoyed the way that we conversed, and it felt, after a very long period of time, it felt good for me to talk to somebody. And after that particular point, that happiness, I wanted more of it. So I started to really like this person. Eventually, we were supposed to meet 3 times and we couldn't. Still, it is the case that we haven't. I don't know till the time this get uploaded. It will get uploaded on 14th of December mostly. तो आज पुणे में एक इवेंट है. अगर तुम लोग 14th को देख रहे हो तो ये पुणे में एक इवेंट है आज. NH7 होता है आज. 14th 15th आदि 2 डेट्स उस दिन पे होता है. 14 से 15 16 भी है शायद. I don't think, there is a very low possibility that I might go to that event, but if I am, then could be that. Still hoping, man, but uh, बहुत सारी ऐसी ऊबड़ खाबड़ सी चीज़ें हैं जो सुनने में ही पता चली. कभी कोई इंसान तुमसे कहता है कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन बीइंग इन अ रिलेशनशिप, एंड देन यू कम टू नो दैट randomly through some other source, that you come to know that there is someone that you look at, and then someone you love spending time with, and that's not me. So I am just at this space where I would not come in between of two people, because I know how does it feel if somebody is just trying to take just trying to enter a situation where it is no point poking your nose into. तो वो जगह मुझे, वो मुझे पता है कितना बुरा लगता है कोई अगर इंसान बार बार अंदर एक ही सिचुएशन में जाने की कोशिश कर रहा हो. बट मेरा ये कहना है, मेरा ये मानना है कि अगर मुझसे कोई कहेगा कि क्रेटोस, आई आई रियली लाइक यू, नो आई वुड लाइक टू नो यू एज अ पर्सन, मैं उस इंसान की तरफ एक बार देख के सोचूंगा कि चलो इसको बताते तो सही कि कौन है इंसान. जानने की कोशिश तो करें. चांस तो दूँ मैं उस इंसान को जानने का कि कौन हो आप, कैसे हो, क्या रहते हो, क्या करते हो, क्या पसंद है क्या ना पसंद है, चीज़ें कैसे करने पसंद करते हो. मेरे हिसाब से तुम चाय में शक्कर कितनी डालते हो, ये भी मेरे लिए एक यू नो this type of information maybe sound, this might sound stupid, but it is a way of just knowing somebody that you would really like to go forward with in a direction. And वो हल्का हल्का सा जब तुम्हारे को अच्छा लगना शुरू होता है ना, it is a very nice feeling, and I really want everybody to have that feeling. But अगर मैं तुम्हारे तरफ 99 कदम चलने के लिए तैयार हूँ, यू नीड टू टेक दैट वन एंड फर्म स्टेप, दैट यस, टेल मी you don't want me in your life. Tell me. If you want to uh, create space, when you specify that you don't want to be in a relationship with anybody, and when you see that happening with somebody, it feels bad, because when you put an effort for somebody and वो recognize नहीं होते ना, बुरा लगता है दोस्त कि then you, it happens with me most of the time कि I start self questioning कि what did I do wrong. um,
कुछ गलती कर दी, कुछ बोल दिया, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो नहीं होनी चाहिए थी, तो यू नो एक एक कोई ऐसी चीज़ होगी जो नहीं होनी चाहिए थी, कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा महसूस हो गया किसी को कि अ, ये नहीं होना चाहिए था, ये तो नहीं करना चाहिए था। तो अगर वैसा कुछ है तो बता दो। मेरा बस यही कहना है कि बता दो वो चीज़ कि अ, बस अभी इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और दूर दूर ही रखो मेरे से। बिकॉज अगर मैं एक बार कन्वेंस हो जाऊँ किसी चीज़ पे कि आई हैव टू इन्वेस्ट माई सेल्फ इन टू समबडी, believe me, it's very difficult for me myself to stop it, because uh, living a extremist life is not an easy task. एक ऐसे एक ऐसे जगह से मैं आ रहा हूँ, एक ऐसे स्पेस से मैं निकल के आ रहा हूँ जहाँ पे मेरे पास में मेरे मीटर पे सिर्फ दो दो नंबर है, एक ज़ीरो और एक 100 है। बीच का जो जो एक्चुअल एक जर्नी तय होती है ना, तो वो ज़ीरो से निकल के 100 जाती है सिर्फ, और वो मीटर तोड़ने के लिए रेडी होती है हमेशा से। तो हालांकि काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि ये सही तरीका नहीं है जीने का, लिविंग इन एक्सट्रीम्स। पीपल मोस्ट ऑफ द टाइम टेल मी लाइफ ऑफ एन एक्सट्रीमिस्ट इज very terrible and very sad, because all you end up doing is for other people, and you don't receive what you expect from people ki whatever are your efforts। देखो, expectation किसी से नहीं रखना is foolishness। मैं This is my quote which I all the way all the time, if somebody is having this type of conversation and I just want to shut that conversation by giving him an infinite loop where you cannot get out of it. So the quote is कि not having an expectation is also an expectation. So किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना भी एक एक्सपेक्टेशन ही तो है तुम्हारी, कि तुम कह रहे हो कि भाई ये मेरे से कुछ ना मांगे, बट तुम उससे ये मांग रहे हो कि वो तुमसे कुछ ना मांगे। शब्दों का खेल है, बट बहुत गहरी बात है इसके अंदर कि अ, ये इस तरीके का इन्फिनिट लूप है जहाँ पे यू कैनॉट गेट आउट ऑफ इट। तुम फंस जाओगे इस चीज़ में। तो अगर मुझसे उस तरीके की कॉन्वर्सेशन करनी है तो आई एम ऑलवेज अप, एनीबडी लाइक्स टू टॉक दैट उस तरीके की कॉन्वर्सेशंस। तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा है कि क्रेटोस, always we find you around people having fun, chilling, making fun, staying in an state where just you just want to do things for people, and you make an effort for people to keep things alive around. And we haven't seen this side of you. There are friends of mine who have talk shows on their streams. They have discussion panels. They have small types of discussion that we personally have. Sometimes, for many of my friends have mentioned this, I would like to quote a name, शिंजो करके एक स्ट्रीमर है, दोस्त है मेरी, बहुत बहुत पुरानी दोस्त है, ठीक है। I knew her for 2.5 years, and suddenly I was in Bangalore. I was doing some work. I was at Nordman at that time, and she was doing a talk show. I joined and I had a conversation. We did not talk for much time, but on stream we had like a 15 to 25 minute conversation. The next statement after that conversation was over, Shinzo told me कि क्रेटोस तेरी ये साइड मैंने कभी नहीं देखी, मैं तेरे को इतने टाइम से जानती हूँ, बट आई डिड नॉट सी दिस साइड ऑफ यू, बिकॉज वो तरीका, वो बात रखने के लिए वो स्पेस क्रिएट करनी ज़रूरी है। तो मैं हर किसी से वो तरीके की बात नहीं करता। अगर मैं किसी को स्पेशल ट्रीट कर रहा हूँ, मैं दिखावा नहीं कर रहा। पहली बेसिक सी बात, मैं अगर चल के तुम्हारे पास में आने के लिए रेडी हूँ, मैं तुम्हारे लिए तुम जब बोलोगे जो बोलोगे वो सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। बिलीव मी, आई एम नॉट फेकिंग। Genuinely, I would like to do efforts, because the people that have stayed around me, Yadavji, Kill Bill, Kittu, these people know. I मेरी लाइफ में एक सिंपल मोटो है, आई डोंट गिव अ शिट टिल, like, I really want to, and
if you come into that really want to category, I really tell you this, don't take me for granted, because after that phase, people people say कि भाई तुम्हारा डू नॉट कैन, आई डोंट केयर एनी मोर आता है, फिर मेरा आई डोंट केयर आ जाता है उसके बाद में। फिर तुम कोशिश कर लो जितना चाहे उतना, यू ट्राई टू पुट मी इन अ सिचुएशन वेयर you would like to talk to me, you would like to communicate, I'm not available. I i vanish. So this is a phenomenon with me which I always tell people ki there is something with me that I am supposed to be in people's life for a certain amount of time, where there is some work designated for me in their life. I come, I do whatever I can. बहुत कम लोग हैं जिनकी ज़िंदगी में मैं बहुत सालों से हूँ, and I stay there because the way that they have respected me is insanely I adore it. I really respect that कि they acknowledge whatever I do for them and they care about me. तो और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनके साथ में मैं साल 2 साल 6 महीना आई हैव बीन इन कॉन्टैक्ट विद दिस पीपल एंड देन आई डू नॉट एसोसिएट विद दिस पीपल एनी मोर, एंड आई एम वेरी ब्लेटेंटली सेइंग दिस थिंग बिकॉज मैं वो इंसान हूँ कि अगर तुम मेरी कदर कर रहे हो ना तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हूँ। आई कैन डू एनी थिंग फॉर यू, you ask me to do things which are not in my capacity, I'll go way and beyond to get it done. तो बस वही चीज़ थी यार कि मैंने बहुत कुछ रिकॉर्ड करा था, थोड़ा सा इमोशनल सीन था उसमें, तो वो कैमरे से रिकॉर्ड हुई थी एक्चुअली। राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माई सिस्टर्स मैक, वो एक्चुअली कैमरा में रिकॉर्ड हुई थी, उसका ऑडियो अलग थी, वो थोड़ा प्रोडक्शन वाला सीन था। ये प्रोडक्शन का कोई सीन नहीं है, इट्स जस्ट अ फेस कैम दैट आई एम गेटिंग रिकॉर्डेड राइट नाउ। तो मैं बस लोगों से ये कहना चाहूँगा कि उस एक इंसान से ये कहना चाहूँगा कि बहुत टाइम लगा है मुझे, मैं जानता हूँ तुम्हारे लाइफ में भी बहुत कुछ हुआ है, और मुझे वो इसीलिए नहीं जानना कि आई वॉन्ट टू पिटी यू, कि अरे यार बहुत बुरा हो तुम्हारे साथ, वो उसके लिए नहीं जानना। मैं बस वो चीज़ इसीलिए जानना चाहता हूँ कि जो गलती पहले कोई कर चुका है जिससे तुम्हें तकलीफ़ पहुँची है, मैं वो गलती नहीं करना चाहता। I just want to make sure that whatever I do, whatever I care, whatever I put in front of you should be should be the final effort that I put in. उसके बाद हर दिन तुम्हें वही इंसान मिलेगा जो तुमको पहले दिन पे मिला था। मेरे एफर्ट्स कम नहीं होते हैं अगर मैं किसी को मेरे लाइफ में लाना चाहता हूँ, और आई वांट टू कीप दैट पर्सन। 100 में से एक होता है ऐसा कि कि दे गो ऑल इन, and these people suffer a lot, and I'm ready for the suffering to take on to the every battle would that would come in my way in order to keep you the way that I actually want you to. So let's see what we can do, and maybe there might be something in future that will for sure become a good way to showcase this or portray this. It feels bad, but um, मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को वो सारी चीज़ें, बिकॉज वो एक ऐसी साइड है मेरी जो मेरी बहुत ज़्यादा वनरेबल है कि, and this is the statement that I make, if you have seen me cry somewhere, you are lucky enough to see that. um, there are very few people or few places that I would go and cry. First is to my deity. Second is the people those who are very close to me.
इसके अलावा आई डोंट वॉन्ट एंड आई वोंट गो, ठीक है। और मैं रोता नहीं हूँ किसी के लिए। माई डेटी टीचर्स मी कि वॉट एवर इज देयर is supposed to go in a certain way, but till the time that you are there, put your efforts, put be the way that you are, put your efforts, अपनी मेहनत करो, and always make sure that सामने वाला इंसान कभी नाराज़ होकर ना जाए तुमसे। मैं वो वाइड लेने के लिए तैयार हूँ लोगों के लिए कि क्रेटोस एक बुरा इंसान है, ठीक है, चलेगा मेरे को। बट अगर मैं तुम्हारी लाइफ में और मुझे लगा कि मैंने कुछ पॉजिटिव करा तुम्हारे लिए, कुछ ऐसी चीज़ कर पाया जो तुम्हारे लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट देगी तुम्हारे में, और उसके बाद भले ही तुम मेरे से बात भी ना करो, मुझे दिक्कत नहीं है उस चीज़ से, बिकॉज मैंने मेरा काम कर दिया। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैं लोगों के आई एम द मोस्ट टेम्पररी पर्सन दैट यू विल इंटायरली फाइंड एनी वेयर अराउंड इन योर लाइफ। तो अगर तुम वो हो, अगर मैं तुम्हारे लाइफ में वो टेम्पररी इंसान हूँ, तो मुझे रेस्ट्रिक्ट करना सीखो, बिकॉज मुझे मुझे बस चलना आता है लोगों की तरफ। आई जस्ट गो, आई गो टू माई फ्लो एंड आई जस्ट do things for people, which eventually is just boring. And somewhere I also think there is a very big empty void which I have been carrying for a very long period of time. वो भरना ज़रूरी है, वो पूरी तरीके से कभी भरेगा नहीं, बिकॉज वो एक आदत है कि जितना भी है, जैसा भी है, जो कुछ भी है, जो दिया जा सकता है दे देंगे, ठीक है। लोगों की परेशानियाँ ले जाएंगे यार, लोगों के गम ले जाएंगे, ठीक है। आसपास से लोगों को खुश रख पाना एक तरीके से, जिनके बारे में तुम केयर करते हो, ठीक है, बहुत बड़ी ताकत है। आज मेरे पास शायद ना हो, ठीक है, आज मेरे पास शायद जो तुम्हारे हिसाब से सक्सेस तुम काउंट करते हो वो ना हो। आज तुम्हारे हिसाब से जो तुम अम, एक एक स्टैंडर्ड जो तुम मेंटेन करके चलते हो तुम्हारी लाइफ में, शायद मैं वो स्टैंडर्ड्स कभी मैच कर ना पाऊँ। लेकिन एक चीज़ है जो मैं लाइफ में कभी उस चीज़ के ऊपर आई कैन बैट, ये चीज़ की यू वोंट फाइंड समबडी लाइक मी, ठीक है। कि जो लोग कहते हैं कि इंसान बदल जाते हैं, ठीक है, और मुझे बहुत लोगों ने ये चीज़ बोले कि क्रेटोस तो बदल गया है, ठीक है। मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि अगर क्रेटोस बदल जाता तो वो तब क्यों बदला जब तुम्हें लगा कि वो बदल गया। वो बदलना चाहता तो वो पहले भी बदल सकता था। वो डे वन से ही वैसा है, ऐसा तुमको किसने कह दिया। तुमने उस इंसान को जाना, पहले तो मिले, जाना, पहचाना, मेरे साथ रहे थोड़ी देर। तो एक चीज़ थी जो कभी बदली नहीं मेरी लाइफ में कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई हैव चेंज एज अ पर्सन। मुझे आज 6 साल से जानने वाले, 10 साल से जानने वाले लोग हैं, आज भी मिलने पे वो वही कहते कि तू वही पुराना इंसान है यार, जो हमको 5 साल पहले मिला था, 10 साल पहले से मैं जिसको जानता हूँ। है काफ़ी सारे लोग जो कहते हैं सारी चीज़ें, बट कुछ ऐसे लोग भी है जो 8 महीने, 10 महीने आसपास रहने के बाद में, थोड़ा सा लाइफ का एक्सेस मिलने के बाद में, मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने के बाद में, ये स्टेटमेंट बना देते हैं कि तू चेंज हो गया है, यू टेकन थिंग्स फॉर ग्रांटेड, यू डू नॉट केयर फॉर पीपल। तो ठीक है यार, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मैं वैसा हूँ तो तुम्हारी ज़िंदगी, तुम्हारी सोच, मैं तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता, किसी को कुछ कहने पे या मानने पे मजबूर नहीं कर सकता। मेरा काम है, मैं करूँगा। मेरा मेरा करने का मतलब यही है, या नेचर यही है कि तुम्हारी ज़िंदगी के कुछ ऐसे सवाल हल हो जाए जो पहले नहीं हो रहे थे। मे भी तुम कर भी लेते हो उसको, बट वो प्रोसेस को फास्ट करना मेरा काम है। वो प्रोसेस को इतना सटीक सटीक भी नहीं कहूँगा मैं, उसमें एनर्जी डालना मेरा काम है, उस चीज़ की स्पीड बढ़ाना मेरा काम है। और इवेंचुअली जब वो स्पीड बढ़ जाएगी और मुझे लग रहा है कि अब संभाल लेगा ये, तो हल्के से, चुपचाप से
उस जगह से मैं निकलने की कोशिश करता हूँ हमेशा। बहुत सारी जगह से निकल जाता हूँ, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि नहीं हो पाता। वो शोर शराबा मचना शुरू हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए मैं बस एक यही चीज़ बोलूँगा कि मैंने जो खुद को सेकंड चांस दिया था, अब टॉपिक चल ही रहा तो बोलूँ, बहुत सोचने के बाद, बहुत टाइम तक इस चीज़ पे कंसंट्रेट करने के बाद आई गेव माई सेल्फ अ सेकेंड चांस। बट वही चीज़ हुई जो जिसका मुझे डर था और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। लाइफ ऑफ एन ओवर थिंकर इज दिस, दैट यू एक्सपेक्ट एवरीथिंग, यू हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट एंड यू फियर समथिंग, fear very limited amount of things in life, not death, but losing somebody that you did not even get। ठीक है, वो वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर है कि जो चीज़ मुझे मिली नहीं है उसको मैं खो दूँ। इससे बदतर कोई चीज़ नहीं है मेरे लाइफ में कि ऐसी कोई चीज़ खो दूँ जो मुझे दिल से ज़्यादा अजीज़ लग रही है, कि मुझे लग रहा है कि इसके लिए मुझे सब कुछ करना चाहिए, बट वो नहीं हुआ, वो वैसे नहीं हुआ जैसे चाहता था मैं। इवेंचुअली लोग मेरे मुंह पे झूठ बोल रहे हैं। हर किसी इंसान के पास में 2024 में अगर कोई कहता है कि मेरे पास में अ, तुम्हारे लिए तो एक टेक्स्ट मैसेज का रिप्लाई देने के लिए तुम्हारे पास में टाइम नहीं, किससे झूठ कह रहे हो यार? हु आर यू फूलिंग? मुझे तो नहीं कर रहे हो, बिकॉज आई लिव इन दिस स्पेस, दैट पर्टिकुलर स्पेस इज माई ब्रेड एंड बटर। इतना झूठ ऐसा बोलो जो एटलीस्ट मुझे बिलीव हो कि भाई हाँ, मान सकता हूँ मैं ये चीज़ कि। और जो कुछ भी चल रहा है बैकग्राउंड में, या तो जो कुछ भी है, जिसके भी साथ हो, जिसके भी साथ जो कुछ भी है, बता दो। एटलीस्ट उस इंसान को बता दो जिस जो है ना, जो राह देखता है ना तुम्हारी, जो वेट करेगा तुम्हारे मैसेज के लिए 4 दिन तक कि कुछ रिप्लाई आ जाए, कुछ पता चल जाए। ठीक है, 4 दिन तक आप रिप्लाई नहीं करते हो, बट आप स्टोरी रोज़ देख रहे हो मेरी, आप रील्स पोस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो दिल से बुरा उसी चीज़ का लगता है कि मैं किसी की प्रिवेसी इन्वाइट नहीं करना चाहता, बट वो अंदर थोड़ा सा है मेरे कि मेरे से मुझे कोई पसंद है ना, तो मुझसे बात करना बड़ा पसंद करूँगा कि थोड़ा सा जान लो तुम्हारे मेरा दिन में क्या हुआ, तुम कैसे हो, कोई दिक्कत है तुमको। ठीक है, और मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ। और वो अगर उतना सा भी अगर मुझे ना मिले तो फिर क्या ही मतलब है दुनिया का, कि तुम बस भागे जा रहे हो, करे जा रहे हो चीज़ें, और होती नहीं है जैसे तुम चाहते हो। तो मेरे हिसाब से वो जो चांस मैंने खुद को दिया था वो गलत था, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, नहीं देना चाहिए था, बिकॉज उसके पहले मैं खुश था। भले ही मेरी लाइफ में 100 दिक्कतें थी, भले ही मेरी लाइफ में खालीपन था, भले ही मेरी लाइफ में एक मुझे नीड फील होती थी कि कोई इंसान हो, लाइक यू नो, दुनिया भर के दिन भर के दुनिया भर के झगड़े झमेले दिक्कतें, 100 परेशानियाँ झेलने के बाद जब तुम घर वापस आते हो, तुम बैठते हो एक कोने में और तुम फ़ोन लेते हो अपना हाथ में और तुम किसी को मैसेज करते हो, और वहाँ से मैसेज नहीं आता 4 दिन के लिए। हर रोज़ हो रहा है कि सुबह में तुम मैसेज करते हो, शाम में करते हो, एंड देन वो पर्सन इंटरेस्ट पहले दिखाता है, थोड़ी देर बात करता है, छोड़ देता है तुमको। तो वो अधूरा छोड़ना जो है ना, वो हवा में बबल बना के छोड़ने वाली चीज़ें मत करो किसी के साथ में। तुमको पता नहीं तुम कितना डैमेज कर रहे हो किसी को। वो इंसान कुछ आस लगाए बैठा हो सकता है तुमसे यार, वो सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस इंसान की लाइफ में ये इतना वेला क्यों है। ठीक है, अगर कोई तुमको मैसेजेस कर रहा है, अगर कोई तुम्हें कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई तुमसे मिलने के एफर्ट्स कर रहा है, ठीक है,
मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि वो इंसान डेस्परेट नहीं है, ठीक है, और जांच लो उस इंसान को कि है क्या, चाहता क्या है, ठीक है, इंटेंशन क्या है। 100% हर बंदा इस तरीके से नहीं होगा कि इसके इंटेंशन सही होंगे। मे बी अपने बारे में बात करूँगा तो पसंद हो यार, पसंद हो, जानना चाहते हैं कि जो इंसान तुम कहीं पे किसी को दिख रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हो, ठीक है, मुझे उस इंसान से कुछ लेना देना नहीं है। अगर वो इंसान वैसा नहीं भी होता ना, और कहीं और किसी और पर्सनल सेटिंग में, किसी पार्टी में, किसी इवेंट पे अगर मैं तुमको देखा होता या तुम्हें मिला होता, तो स्टिल वो चीज़ सेम होती जो आज है, ठीक है। बट मेरी बस वही एक रिक्वेस्ट है कि anybody who puts in efforts for you, anybody who is trying to make a move into towards you, ठीक है, एंड पास्ट ट्रॉमा सबके होते हैं, मेरा भी है, ठीक है। उसका एक तुम कोपिंग मैकेनिज्म बनाते हो तुम्हारे दिमाग में, जिससे तुम खुद को बचाने की कोशिश करते हो चीज़ों से, जो कि मेरा भी है, ठीक है। तो बट उस टाइम पे तुमको इतना सेंसिटिव होना है कि अगर जेनुअनली कोई बंदा तुम्हारे लिए एक एफर्ट डालता है कि ठीक है, तुम बार बार मना करो उस इंसान को, देखो कि वो बंदे की कैपेसिटी क्या है, कितना है, कहाँ तक के पुश कर सकते हो तुम उसको। क्योंकि मैं करता हूँ, ठीक है, मैं अगर अपने आप को किसी को देना चाहता हूँ ना, एक सजा के, एक गुलदस्ता में सजा के देने की कोशिश करता हूँ ना, बट वो गुलदस्ता सजा के देने में, वो गुलदस्ता बनने में बहुत टाइम लगता है। फिर मैं फूल चुनता हूँ, फिर मैं तरीके तरीके की चीज़ें लगाता हूँ उस पर ताकि वो खूबसूरत दिखे। और वो मिलना किसी के लिए बहुत, मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात है कि आई गेव यू एक्सेस टू स्पेस दैट नो बडी इज़ अलाउड टू टच इवन। तो वो करना, एंड वो रख देना खुद को सामने की, वो खान साहब की लाइन बड़ी मुझे याद आती है कि मैंने मैंने तेरे सामने अव्वल दा खंजर रख दिया, फिर कलेजा रख दिया, दिल रख दिया, सर रख दिया, और अर्ज़ किया मेरे बाद किसको सताओगे। तो तुम सताना बंद कर दो, ठीक है। वो इंसान पहले ही दुनिया का बहुत सताया हुआ है, ठीक है, दुनिया का, सिचुएशंस का, लाइफ का, ठीक है। कुछ एक चीज़ है उसके पास में, पता नहीं क्या है, उसके पीछे दौड़ रहा है, ठीक है। मे बी मैं शायद उतना अच्छा इंसान नहीं हूँ, ना मैं उतना सक्सेसफुल हूँ, ठीक है, तुम्हारे पैरामीटर्स के हिसाब से, लेकिन वो प्रोसेस जो है टू बिकम दैट समबडी इज़ वॉट आई एम ऑन टू राइट नाउ। मे बी शायद आज 2 साल में नहीं, 4 साल में नहीं, 6 साल में नहीं, 10 साल में भी, 12 साल में, 15 साल, आई डोंट नो कब होगा वो। बट लाइफ में एक एम्बिशन ज़रूर है, एक ड्राइव ज़रूर है कि कहीं पहुंचना है, कुछ कुछ ख्वाब है जो पूरे करने हैं। बट उस चीज़ के लिए ना एक इंसान का साथ में खड़े रहना ज़रूरी है। वो इंसान मैं जब भी ढूंढने गया हूँ तो मुझे रिजेक्शन के अलावा कभी नहीं मिला, ठीक है। फीमेल्स, लड़कियाँ हैव अप्रोच्ड फॉर द पर्सन दैट आई हैव बीन। कोई मेरे से मिलता है, या तो कोई मेरे साथ में बहुत टाइम के लिए काम करता है, तो वो इंसान को वो चीज़ पता चलती है कि ये जैसा दिखता है, जैसा लोग इसके बारे में बताते हैं, ऐसा है नहीं। तो वो एक एफर्ट है कि कुछ चीज़ें हैं ज़िंदगी में जो करनी है किसी के लिए, ठीक है। वो एक इंसान होना ज़रूरी है मेरे लिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू फॉल बैक समवेयर, यू नो, व्हेन आई एम टायर्ड ऑफ द वर्ल्ड, आई नीड समबडी टू कम टू मी एंड टेल कि कोई बात नहीं, ठीक है, तू कर लेगा, ठीक है। प्रखर भाई की एक बात मैंने सुनी थी जिसमें वो कहते हैं कि व्हेन यू आर डाउन, व्हेन यू आर द लोवेस्ट, ठीक है, a good woman that you have besides you, and who she tells you this thing कि तुझे कोई इस दुनिया में हरा दे ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। वो चीज़ बिलीव करने के लिए तुमको कोई नहीं चाहिए। यू यू डोंट नीड गीता का सार, यू डोंट नीड
Brahma ki Vani. You don't need any Osho, any guru to tell you that just can be done by a woman. Only she can do it in your life. A good woman that is responsible enough to take care of you, that she knows whomever she is with, ठीक है, the person who's ready to fight the world, ठीक है, he will make it. But वो he will make it तक के जो सफ़र है ना, उसमें ज़रूरत है उसको। चाहता हूँ यार कोई साथ में खड़ा रहे कि कि लगे लोगों को भी कि और मैं क्रेडिट देने से पीछे नहीं हटता। तुमने कुछ किया है तो तुमने किया है, ठीक है। मैं अगर कहूँ कि जो कुछ भी आज मैं हूँ, ठीक है, वो मेरी मेरी माँ के बहुत एफर्ट्स हैं, मेरी बहन के भी है, मेरे डैड के भी है, ठीक है। मेरी मेहनत बहुत कम है चीज़ों को करने में। पीपल हैव पुट एन एफर्ट, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स बिहाइंड मी, ठीक। तो मैं सेल्फ मेड कभी किसी को बोल नहीं सकता कि मैंने खड़े की चीज़, ठीक है। मैं मेहनत करता हूँ बस। मेरे को बस ऊपर वाले ने, मेरे भगवान ने यही सिखाया कि मेहनत करो, बाकी का मैं देख लूँगा। तो और बाजू बाजू के लोग हैं मेरा जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को सपोर्ट करता है। एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा हूँ यार मैं, और उसके इंसान उस स्पेसिफिक इंसान शायद वो देख भी रहा होगा, तो मैं उसको यही बोलना चाहूँगा कि मेरी ज़रूरत बहुत कम है कि you just being or existing somewhere, and you being a person who is there for me for the time that I want, and even if I don't want, I want somebody just to be there, just to be there, you know। जब मेरा फॉल बैक आए कि नहीं हो रहा है दुनिया से भागने की, दुनिया से भागने का मन कर रहा है, उस टाइम ये चीज़ हो कि ठीक है, कोई नहीं, कर लेगा तू, मैं हूँ तेरे साथ में, तू कर लेगा, मुझे पता है। वो वो एनर्जी का जो एक स्पार्क है ना, वो पूरा जंगल जलाने के लिए काफ़ी है। वो एक स्पार्क, एंड आई सी दैट capable enough to put that spark in me। You never know what is gonna happen in future, because मैं सारी चीज़ें बहुत बार बोलता रहता हूँ कि ये होगा वो होगा, ये करना है वो करना है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वो जो कॉन्फिडेंस है अंदर से, वो कहीं ना कहीं इंसान से टूटता ज़रूर है। मेरे साथ होता है ये चीज़ की हल्की हल्की से you broke down into pieces, and then you just try to recollect it every time that you want to make yourself back up so you can start working again। but उस टाइम पे ना मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी केयर ले, बट मैं कहता नहीं हूँ। मैं कह नहीं सकता किसी से जाके कि आई वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ मी। अगर मैंने बोल दिया, तो जबकि मैंने बोला है, एक इंसान को मैंने बोला था कि आई रियली वॉन्ट यू टू टेक केयर ऑफ मी, डोंट लीव मी। The only condition that I keep you in my life, or you take you in my life, is you will not leave me at a broken end, because the most difficult thing in my life that I cannot cope up with is leaving me at a broken end। मैं डील नहीं कर सकता उस चीज़ के साथ में। इट इज़ वेरी that version of me is very unbalanced। He is vulnerable, he can cry, he can do the most insane amount of uh, thing that you can imagine in this world, because he's the most powerful one also, and he's the most vulnerable one also। He can legitimately go and do anything to himself or any other person, and he can sit crying there for days। तो वो तरीके का इंसान हूँ मैं उस टाइम पे मैं नहीं रहता। देन आई डोंट वांट यू टू डू दैट, एंड वो वर्ड फिल करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। हील करना बहुत दिक्कत भरा है उससे, क्योंकि है नहीं तुम्हारे आसपास कोई जो तुमको उस तरीके से हील कर दे। तो
बस यही रिक्वेस्ट है यार कि ये जो बदलाव मेरे अंदर आया है, ये जो बदलाव मैंने करने का सोचा था, सही तो नहीं गया, ठीक है, बट सेकंड चांस जो मैंने खुद को दिया था, मैं इस चीज़ को जब तक मुंह ज़बानी ना सुन लूँ कि ये ऐसे की बात ऐसी है, ठीक है, तब तक तो सब चीज़ें नॉर्मली चलती रहेंगी. बट द aggressive side of it is कि things or people those are around. I just want to tell some people that this is now shifting to becoming who I am, ठीक है. Some small warnings to people those who are trying to make situations difficult for me. Don't do that. प्रोफेशनलिज्म के बारे में अगर तुमको कुछ पता होगा तो प्रोफेशनली काम करो मेरे साथ में. पीठ पीछे लोगों के पीछे जाके ये बोलने की ज़रूरत नहीं है कि क्रेटोस doesn't talk to me, Kratos doesn't do this, Kratos does everything. You need to have the guts to come and talk the same shit that you talk behind my back. Be that much uh, courageous to do it in front of me, or don't do it, because तुम्हारी बस की है नहीं पहले तो, ठीक है. तो ये कॉन्फिडेंस कहीं और से आता है. तुम बीट करने में तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी. यू कैन नॉट बीट मी इन दिस. ये फील्ड में तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है. बिकॉज अगर कुछ बनाने में जो मेहनत लगती है ना, वो मेहनत लेनी मुझे आती है, और उसको ख़राब करने में तुम्हें जो मेहनत लगेगी ना, उसमें ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है. क्योंकि जब तुम आउटवर्ड तरीके से लोगों की हेल्प करने जाते हो और तुम लोग के साथ में लोग बकचोदी करते हैं ना, फिर तुमको यू डोंट नो द बकचोद साइड ऑफ मी. When I get down, if I really get down to business, then brother, there is a reason that I call myself as Soul Creators. It is not that easy. It is not that fun for you, and I'll make sure that it doesn't remain fun for you anymore. If I come down hunting you, believe me, that would be the end of their career. मैं बहुत गंदे तरीके से थ्रेटन करता हूँ मेरे मेरे ब्लॉग्स में और मेरे चीज़ों में. मैं इस चीज़ को लेकर मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ कि डोंट डू शिट. पहले बस की नहीं है तुम्हारे, ठीक है, करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे अफेक्ट नहीं कर रहे हो. जिन लोगों को जाके बोल रहे हो ना, वो लोग आके बोलते हैं अरे क्रेडिट्स भाई तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी. उस बंदे के नज़र में भी इज्जत गिरी, मेरे में तो छोड़ ही दो. क्योंकि तुम्हारे को जब मैंने सामने का, मैंने शोड यू द डोर, दैट टाइम फ्रॉम वॉट एवर डिग्री दैट यू वर इन माई लाइफ, यू वेंट टू माइनस. ज़ीरो पे भी नहीं हो, वेंट टू माइनस. सो अगर जीना है तो मेरे से दूर रह के जीना, ठीक है. मेरे मेरे फट्टे में टांग अड़ाने के लिए मत आओ. मैं किसी और का कुछ खाने नहीं आया यहाँ पे. खुद की थाली और खुद का खाना. दूसरे की थाली में मुँह मारना मेरी आदत नहीं है. तुम्हारी होगी तो शौक से करो, ठीक है. इतना दुख लगता है तुम्हारे को कि क्रेटोस ऐसा है, क्रेटोस वैसा है, तो जब क्रेटोस अपनी, ठीक है, कर रहा होता है ना मेहनत, उस टाइम पे आके देखा करो, ठीक है. क्रेटोस अगर तुम्हारे को 4 अलग अलग स्ट्रीम्स पे दिखता है ना, तो सिर्फ क्रेटोस सिर्फ 4 अलग अलग स्ट्रीम्स पे नहीं रहता है. क्रेटोस 14 अलग अलग स्ट्रीम्स पे होता है. वो 4 पे इसीलिए दिखता है क्योंकि उन 4 पे तुम एग्जिस्ट करते हो. मेरा काम तुम लोगों को ये सब कुछ मॉरल पुलिसिंग करने का नहीं है, बट ये मैं टॉपिक इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि सुनने में आता है चीज़ें कि व्हेन पीपल, some people those who know me IRL for a good time, meet people that they don't know but they met through me. Person A knows person B because I made them meet. Person B goes up to person A and says ki I don't talk anymore, we don't have conversations, we don't connect anymore. And you try to make up a situation where you want to have a reaction from other person. Don't do it. जिस दिन मैं उस सिचुएशन में आके खड़ा होगा ना, तुम्हारा मुंह नहीं खुलेगा, फट जाएगी तुम्हारी वहाँ पे. मैं लेजिट ये चीज़ बोल रहा हूँ. ट्राई नहीं. डोंट. इफ़ यू हैव द गट्स टू टेल थिंग्स, से इट ऑन माई फेस. मेरे इंस्टाग्राम डीएम्स, मेरा यूट्यूब, मेरा डिस्कॉर्ड, ठीक है, सब अवेलेबल है लोगों के पास में.
और अगर तुम इतने इंपॉर्टेंट इनफ समझते हो खुद को मेरी लाइफ में, तो तुम्हारे पास में मेरा नंबर भी होना चाहिए. If you have my number, means you are important enough in my life that I have provided you with it. So make sure you don't do it, because if I come biting behind, I just come behind you, I'll make sure nothing exists for sure. इसमें कोई दो राय नहीं है. आई विल मेक श्योर दैट फ्यूचर में जाके सेकेंड टाइम उसका अकरेंस हो ही ना, नहीं मिलोगे तुम. तुम्हारा एग्जिस्टेंशियल जो स्पेस है ना तुम्हारा इस पर्टिकुलर चीज स्पेस में, वेर यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस समबडी नेगेटिवली अबाउट मी, स्पेस ही ख़त्म कर दूंगा वो तुम्हारी. और वो मैं नहीं करूँगा, वो तुम जिस इंसान को जाके बता रहे हो ना, वही आके तुम्हारे दो थप्पड़ मार के जाएगा. और वही तुमको ये चीज़ बोलेगा कि पहले जान ले उस इंसान को, कौन है, क्या एफर्ट्स करता है, क्या करता है, क्यों करता है. ठीक है, मेरे से मस्ती मत करो. मजाक खेलने की चीज़ नहीं है. ठीक है, जितना हंसता हूँ और जितने मजाक मस्ती हैं, जितने जोक्स क्रैक करता हूँ, जितना जॉली रहता हूँ ना, अंदर से उतना ही अंदर से उतना ही हर महादेव. ठीक है, तो आई वर्शिप various forms of my deity. He makes me that way. Try to control myself and conserve that energy and put it in efforts. But if you do it, that's to my deity's nature to take care of you. Then he projects it. He'll do it. I believe in him more than anything on this planet. तो मत करो मत करो मत करो और मत करो. ठीक है. On this note, I will end this. If you have made it till here, ठीक है, thank you for watching. And अगर वो इंसान अभी भी देख रहा है, तो जब भी तुम्हें देखने को मिलेगा तो मेक श्योर यू ड्रॉप अ टेक्स्ट बैक, लेट्स टॉक एंड आई वांट टू टॉक समथिंग वेरी सीरियस. सो लेट्स सी, जो भी बात होती है. एंड future is going very great ahead. There are very good future plans that I am really very excited about. 2025 could be the first stepping stone. It could be the first step. I don't want to make it a stepping stone, but I want to make it a step towards achieving what protocol has always wanted to. It's the first step, and I really, really, really want this to work. Uh, Thank you for people that have showed that um, eagerness to work with me. I'm really excited for 2025, and hopefully at the year end, fingers crossed, at the 2025 ka end, maybe there could be a very good party that would happen IRL for many people, including many creators from the industry. Thinking about too many things right now. So yes, this is what we are planning. And eventually, if you're not following protocol.gg, please do go follow us on Instagram, follow me on my socials. And thank you very much for watching again. This is ये बातें सीजन 1 एपिसोड 4 बदलाव.